11টামান বজাত ডঙা বতাহ আহি কিনি কাঠৰ যিখিনি ঘৰ চৰ ভাঙি আমাৰ ইয়াতো ভাঙিছে আৰু বেলেগ গাঁৱতো ভাঙিছে। District Disaster Management visits thunderstorm affected areas. Following the news of heavy damages to several houses caused due to thunderstorm accompanied by hailstone in Diumung area, the District Disaster Management visited the Probidisha and Wasibil on Wednesday. बारिश आया रहा और फातर भी गिरा रहा और तूफान भी आया हुआ है। फातर से और बांग्ला दिया। Vicky Phukan of District Disaster Management visited the people affected in yesterday's thunderstorm and suggested them to apply for financial assistance to the Deputy Commissioner Dima Hasao soon with evidences so that they can avail the government assistance. আমি ইনফরমেশন পাইছিলোঁ এই দুখন বস্তি আছিলে এইটো এৰিয়াত ডিহুংগড় ব্লকত তাত কি কয় শিল বৃষ্টিৰ কাৰণে ক্ষয়ক্ষতি হৈছিলে। আমি আহিছোঁ, আমি দেখিছোঁ যে ভালেমান ঘৰৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। এতিয়া গাঁওবুঢ়াৰ লগত তেওঁলোকে আমাক এটা ইনফৰমেশ্যন দিয়ক যে কিমান ঘৰৰ একচুৱেল নাম্বাৰটো আমাক প্ৰভাইড কৰিলে আমি নেক্সট প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিম, যিটো আমাৰ ফিল্ড ভিজিট হ'ব আৰু ডেমেজ এছেছমেণ্ট হ'ব। তাৰপিছতে পিছৰ কামখিনি আমি আগবঢ়াব পাৰিম। Dima Hasao DCC details Congress manifesto. In a press meet held at Rajiv Bhavan today, the Dima Hasao District Congress Committee led by its district president Nirmal Langthasa and Daniel Langthasa, MSc NC Hills Autonomous Council. President Langthasa dwelled at length on the ST-SC backlog Northeast status along with many other beneficial aspects of the manifesto. जैसे कि सब मालूम है असम में भी करीब 15,000 का जैसे हम लोग का बैकलॉग SC/ST का हम लोग का बैकलॉग से वो अगर कांग्रेस आएगा तो दोबारा करेगा। इसको आपको हम लोग उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हम लोग को 2000 जब काउंसिल में हम लोग था, जो लास्ट काउंसिल में और स्टेट में जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, उसमें करीब यहाँ में नियर अबाउट 400 जो पोस्ट SIU किया था, वो सारा ST/ST का हम लोग का जो स्टेट्स का जो जितना भी हम लोग का इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था उसमें हम लोग SIU क्लियर किया है। तो फिलहाल अगर आप लोग इन कंपैरिजन अगर बीजेपी को देखते हैं, ये करीब 3 साल हो गया ये थर्ड फाइनेंशियल बजट रनिंग है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन वो बैकलॉग का कुछ हम लोग देखा भी नहीं। SIU क्लियरेंसेस हुआ ही नहीं। जो भी हुआ था वो दैट इज रीवैलिडेशंस करा के, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में रीवैलिडेशंस करा के जो दिया था उसकी अपॉइंटमेंट दिया। तो ऐसा बहुत सारा चीजें है जो हम लोग को। Daniel Langthasa, MSc North Kachar Hills Autonomous Council, explained the beneficial aspects of INC's manifesto like NAY and other related to the power of any function of the autonomous councils. क्या हुआ और हम हुआ खुद गुवाहाटी में हम मालूम है आज स्मार्ट सिटी का बात करता है। एक स्मार्ट सिटी इंडिया में निकाल के दिखाओ which actually became a smart city from nothing। लेकिन गुवाहाटी एक्चुअली became a smart city in 2006 and 2007 under the Congress government। इतना फास्ट राइज किया, लेकिन 2014 से लेके 2019 आज आप गुवाहाटी को देखो, जो रास्ता इतना अच्छा था उस समय आज अच्छा रास्ता खराब हो गया। गुवाहाटी में उस टाइम में जो स्ट्रीट लाइट्स इतना निकला, आज देखो कैसा हो गया। लास्ट 10 इयर्स में उस टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट का अंदर में आसाम में गुवाहाटी जो सेंटर है, कैपिटल है, वहां में कितना बिजनेस बूमिंग हुआ, नया बिजनेस निकला। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में इतना सुंदर से हार्मनी बैठा, बिकॉज हम खुद वहाँ में स्टूडेंट था, हम वहाँ में बैठा है, हम देखा है वो सब चीज आ गया था। कैसे थ्रू ऑल दिस मतलब एक नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस दिया था, एक नया एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज फिर से अभी कांग्रेस गवर्नमेंट लाएगा पार्टी में पावर में आने के बाद में। नंबर 2 पॉइंट, we will withdraw immediately the widely resented Citizenship Amendment Bill introduced by the BJP government against the wishes of the people of the Northeast states। Citizenship Amendment Bill का against से पूरा Northeast मूवमेंट निकाला है। एंड इवन दो बीजेपी का अलायंस का गवर्नमेंट लोग
वो लोग भी अपोज किया, फिर भी दे वेर हेल बेंट, वो लोग पुश करेगा बोल के था। लास्टली राज्यसभा में हम लोग का ओपोजिशन जो है वो लोग स्ट्रांगली यूनाइटेडली काम करा, इसलिए ये होगा, बट लेड बाय द कांग्रेस पार्टी माइंड यू। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो पूरा आसाम का, स्पेशली आसाम का जो जितना आदमी लोग रास्ता में निकला, स्ट्रीट्स में निकला प्रोटेस्ट करने के सीएबी का अगेंस्ट में, और पूरा नॉर्थ ईस्ट में द पीपल पावर जो है उसका वजह से ये स्टॉप हुआ, और कांग्रेस पार्टी ये रिकॉग्नाइज करके उनको लीड करा। और मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है, देयर इज नो कंफ्यूजन है, यहाँ में क्लियरली लिखा है कि वो लोग विड्रॉ करेगा पावर में आने के बाद में। नहीं, देखिए बीरेन सिंह इज द ओनली एमपी जिसने मतलब अपना एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, हमें कार्बी डिमांड बिल बोल के प्राइवेट बिल 2016 में, विच हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट एक डिमांड करा है। हाँ, हम लोग को यहाँ में बहुत लोग ऑटोनोमस स्टेट डिमांड करता है, धरना में चल जाता है, ये वो करता है, बट पीपल डोंट रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। शायद हम लोग को सिस्टम का शायद वो लोग मालूम नहीं। हम लोग को एक्चुअली ऑटोनोमस स्टेट मिलने का लिए 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग मिलने लाएगा, एक आदमी हल्ला करने से नहीं होगा यहाँ में। और पार्लियामेंट में कितना लोग हैं आप लोग मालूम है, मेंबर्स, वहां से 2/3 मेजोरिटी कैसे मिलेगा बोलो तो? कैसे मिलेगा विद रीजनल पार्टी? रीजनल पार्टी का वॉइस से कैसे 2/3 ऑफ द मेजोरिटी कभी वोट करेगा? सो फॉर दैट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ ए नेशनल पार्टी। और नेशनल पार्टी में होके दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बीजेपी भी बैठा है नेशनल पार्टी में। बीजेपी पहले में भी बैठा है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बैठा है, राजनाथ सिंह आया था उस टाइम में, कैंपेन किया था कार्बी आंगन में भी, और बोला था कि हम लोग को पावर में आने के बाद में हम लोग आप लोग का 244 आर्टिकल ए को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन नहीं किया। लेकिन बीरेन सिंह इनकी ने वो अपना बिल डाला है, अभी वो लोग पास नहीं हुआ बिकॉज अभी गवर्नमेंट नहीं है। और ऐसा नहीं कि हाँ कांग्रेस भी पास कर देगा, क्योंकि हम अकेला से नहीं कर सकता है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी लगता है। सो हमें इवन कांग्रेस को छोड़ के दूसरा पार्टी एमपी दूसरा पार्टी का वो लोग भी हाँ बोलने लाएगा फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, तो पहले वो लोग को समझने लाएगा, देन एटलीस्ट स्टार्ट तो क्या है ना, इनिशिएट किया है उसने। और सेकेंडली उसके बाद में आप लोग देखिए ये रिसेंटली जो सीएबी का मामला भी हुआ, 6 शेड्यूल एसटी स्टेटस भी जो देगा बोला छेटू कम्युनिटी को दे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर ए एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। बीरेन सिंह एमपी ले उधर से प्रेशर देके एमपी होके उसने ये उसको रुकाया है, एटलीस्ट डिस्कशन होने दिया है, सो दैट अभी एसटी कम्युनिटी छेटू कम्युनिटी को देने नहीं होने के लिए। एंड सेकेंडली आप जो काम बोलेगा एज एन एमपी, आई एम मेरा ये मानना है कि जो फंड मिलता है, जो पावर मिलता है एक एमपी को, आजकल का टाइम में बहुत डाइल्यूट होके हो गया है। और आप लोग बोल सकेगा कि क्या किया है वो क्या है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को जो जगह है, जो एक तो कम्युनल हार्मोनी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनल हार्मोनी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में मेन थिंग है। डेवलपमेंट तभी हो सकेगा जब कम्युनल हार्मोनी होता है। आप बोलिए जब एक तो धरना होता है, एक तो बंद होता है, जो एक तो क्लैश होता है और यहाँ में मतलब सीज फायर हो जाता है, उसमें कोई डेवलपमेंट वर्क हो सकता है? आप बोलिए उसमें डेवलपमेंट वर्क हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो एक मिनट तो एमओएस साइन करने में वो लोग था ना, नहीं उसका हाथ था ना, नहीं वो भी तो था। वो तो 2 मिनट बीरेन सिंह के बारे में बोल रहा है, तो हम सिर्फ बीरेन सिंह के बारे में नहीं बोलेगा, तो वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर है, ही रिप्रेजेंट कांग्रेस। अकेला कोई आदमी काम नहीं करता है, तो नहीं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता रहा, क्यों नेशनल पार्टी में, क्यों एक पार्टी में है? अकेला काम नहीं होता है, मिल के काम करता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ में पीस लाने में भी तो उसका हाथ था, ही वॉज द एमपी फॉर द फर्स्ट, एंड आदमी लोग गुस्सा हो गया। अच्छा मतलब कल हम गुस्सा हो जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट से, तो हम बंदूक निकाल के हम एक पार्टी लेके हम हड़ताल कर देगा, आदमी को मार देगा, आदमी को डिमांड करेगा, तो इसको बोलता है बदमाश बच्चा। बदमाश बच्चा को कैसे ठीक करता है? बदमाश बच्चा को भी डंडा मारेगा और बदमाश होगा। अच्छा से एज ए पेरेंट आके समझाने लगता है। लीडर का काम भी सोसाइटी में वही होता है कि हम लोग टॉक्स बैठाया, बोला कि समझो तुम लोग भी, वो लोग को मार तो नहीं दिया ना, वो लोग को जेल में तो नहीं डाल दिया ना, अच्छा से समझाया, क्योंकि डेवलपमेंट लाना है, चलो एक साथ काम करेगा। सो बीरेन सिंह एमपी बीइंग द एमपी, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ ऑल दिस जो प्रोसेस में लाया, यूपीडीएस लोग को लाया, डीएसटी लोग को लाया। वेरएस आज जो बीजेपी जो एक कैंडिडेट दिया है, वो क्या किया? कार्बी डिमासा क्लैश कैसा हुआ बोलो आप? कितना इनोसेंट लोग मारा हुआ में, इनोसेंट लोग को मारने में, घर जलाने में, कितना लोग डिमासा लोग को घर जो जलाया उस टाइम में कौन था पार्ट?
यूपीडीएस तो कौन चला रहा था? वो लोग उस टाइम क्या ठंडा दिमाग से नहीं सोच सकता था? आज पॉलिटिक्स में खड़ा हो रहा है। अगर कलम ही यूज करना था, पेपर यूज करना था, तो तब यूज नहीं किया? तब क्यों माथा गरम हुआ तुम लोगों? दिस इज नॉट कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप आज हम बोलता है, बहुत लोग बोलेगा बीरेन सिंह क्या किया, हम बोलेगा बीरेन सिंह शायद आप लोग को मतलब दुनिया सिंगापुर नहीं बना दिया, लेकिन किसी का खराब भी नहीं किया उसने, किसी का जान तो नहीं लिया, किसी को घर तो नहीं जलाया। और क्या क्या किया तो आप जाके पूछिए कितना कितना फिशरी बना है। ये अभी हमारे पास लिस्ट नहीं है बोल के आप होम साइंस से जाके आप सोमपीजांग में भी जाके इंडिविजुअल आप देखिए घर कितना मिला है, किसी को फिशरी मिला है, किसी को रास्ता मिला है। हाँ, तब का टाइम में सोशल मीडिया नहीं था कि आज का टाइम में ऐसा हो गया, एक तो कलवर्ट बना दिया, उधर में जाके मिनिस्टर से लेके सीएम से लेके सब पहुंच जाता है, देखो डेवलपमेंट किया बोल के। हाँ, 2004-2003 ऐसा टाइम नहीं था जहां में सब चीज में मोबाइल से लेके आज हम यहाँ में मीटिंग करने चला गया बोल के डेवलपमेंट, वाह व्हाट ए ग्रेट लीडर, ऐसा नहीं था बोल के। लेकिन ऐसा है बोल के ऐसा नहीं किया, लेकिन हम फिर भी बोलेगा हाँ कंप्लेन हो सकता है कि और कुछ करना था, और कुछ करना था। लेकिन आप आज रास्ता में जाइए, सबको पूछिए, बोलेगा हाँ बीरेन सिंह किया क्या, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा कि बीरेन सिंह ने हमको इतना तकलीफ दिया बोल के, कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन आप जाइए अभी दूसरा कैंडिडेट को पूछिए, वो लोग बोलेगा कि कोई तो शायद बोलने के लिए आज जिंदा भी नहीं है। तो आप कैसे टाइप का आज लीडरशिप आज हम लोग प्रमोट करने मांगता है? अगर ऐसा लीडरशिप हम लोग प्रमोट करेगा तो कल का बच्चा लोग क्या सोचेगा? कल का बच्चा लोग क्या सोचेगा? आप लोग ये सोचिए। हम लोग को डेमोक्रेसी इज नॉट हैविंग द परफेक्ट लीडर, बट इट इज हैविंग द बेस्ट चॉइस जो अवेलेबल है, उसके साथ में हम लोग जाने के लिए, दैट इज डेमोक्रेसी। We are not looking for the perfect party, we are not looking for the perfect candidate. Then आपका जो ऑप्शन दिया है उधर में हम लोग जाना है, वही है। थैंक यू।